Good morning to each and everyone. Welcoming you to Kheda Park or Shahid Bhagat Singh Park, you can see here. This is the 1st of August and the month particularly of the independence of India. Sometimes a question comes, are we really getting independence particularly from almost all the crises? Mouth is there particularly of the unemployed. Not to speak of there, wherever you go, there is crowd. And system simply is to be blamed like that. Suppose, अब यहाँ पे इस पार्क को हम देख रहे हैं, चलिए इधर में आते हैं इस तरफ. इस पार्क को हम देख रहे हैं, देखने के बाद यह जगह तो अच्छा है, ठीक ठाक है. जब बारिश होती है तो वक्त पुल बन जाता है और कह सकते हैं कि वाटर लॉगिंग होता है. यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम काम करने के पहले जैसे होता है ना कि जैसे अंग्रेज़ों ने जो बिल्डिंग बनाई, ठीक है, या जो भी आए उनका तो कहीं नहीं डूबता, कुछ नहीं डूबता है. आखिर ये डूबता कहाँ है ना. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा मीडिया बोलता है. ये कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है, हमारी इंजीनियर्स में, या जैसे कि मान के चलो एक हमारा सोच है सर, खराब नहीं पाएंगे. जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है. जहाँ पे समाज सजग नहीं होता वहाँ लूट खसोट होता है ना. अब चलिए आगे बढ़ने के पहले मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ. हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर प्रकाश चंद्र झा और हमारा मकसद है लोगों से मिलाना. आपका दोस्त शब्द हो सकता है, वैसे बच्चे को थोड़ा सा हेल्प करेगा जो स्ट्रगल करता है, उसके मालूम नहीं क्या करता है. बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना. और जैसे कि एक दिन एक बच्चे से मेरे ऐसे बातचीत हो रही थी, वो पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है. तो बोला सर जैसे मुखर्जी नगर में आप देखेंगे जाएंगे तो बच्चे फादर तो पैसे भेज रहे हैं, लेकिन बच्चा लीकर में या इधर उधर में करने में समय भी जब नहीं कुछ होता है तो या तो फिर बाप से बिटते हैं या सुसाइड करते हैं. तो इसके लिए हमने एक टैग लाइन बनाया है. टैग लाइन बनाया है कि आज लोगों से बात नहीं करता है, बात करो ना आप. कोई नहीं मिलता अपने से करो, वो भी नहीं मिलता है जिससे करो. तो टैग लाइन ऐसा है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए, है ना. कोई नहीं मिलता, पेड़ पकड़ लो. हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच पर्सन, आई वांट टू रिलीज माय टेंशन. बोलो, वो कोई नहीं, किसी को नहीं बोलेगा. और एक महीने के बाद आपका पैर जैसे आप जाएंगे वो पेड़ भी हिलने लगेगा. इफ जगदीश चंद्र बसु कैन टॉक व्हाई कांट यू, है ना. अब चलिए इससे आगे बढ़ने के पहले आप अपना यू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज. So my name is Manoj Pawar. Very good. I live nearby in this area only. Yeah. I came to park almost every day to spend some time in the green area. Quality time or since this much like this? Quality time, actually I am working in a private firm, Very so good. I don't have that much time. Very good. So I try to spend at least 30-35 minutes every Very day good. in this park. Yeah. Just to do a warm up of my physical activities and to spend some time looking at the Very green good. bushes here and there. What about your qualification? So I am a postgraduate in marketing. Marketing. Acha. Oh, very good. Yeah. And I am working right now. I have a family. We are staying here since last 15 years. And that's my life. I bring my kids here so that they can also get in touch with this nature. Because the life which we are spending right now is just here and there with the medical technologies and IT and the devices. Yeah. Like mobile phones and laptops. Yeah. I want my kids to be next to trees, grasses, Yeah. feel the mud, how the mud look like. Like we used to play in my young age. We used to spend at least 2 to 3 hours every day while playing in the park. Yeah. But nowadays, They're confined to four walls. They're confined to just walk four one, walls and with a walk and device walk. in their hand. Yeah. Walk and walk like that, you can say. So many times question comes, we are producing engineer, we are producing doctor, we are producing professionals, but not human being. By human being, what I want to say, you know it, you know sir. जैसे कहने का मतलब मैं सब पेशेवर को बना रहा हूँ, लेकिन आदमी नहीं बना रहा हूँ. जैसे मान के एक मिनट, हमारा एक सोच ये है कि आप जैसे आदमी बनाओगे तो कम से कम जैसे एक दिन एक बच्चे को हमने देखा, वो बहुत दौड़ भाग रहा है, फिर उसको हमने ये किया, नहीं तो वहीं ख़त्म था. तो अगर मैं बच्चों से मिलाता हूँ तो अगर वो गिरता है तो कम से कम कोई पीठ तो ठोकेगा, है ना. पार्क में हम आ तो रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर रहे हैं. और हमारा एक सोच है, आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हमारी ये स्थिति है तो आगे आने वाले समय में क्या होगा. और ख़राब हो जाएगी. और ख़राब होगा ना. तो जितना जैसे मान लीजिए सपोज मैं रिटायर हो गया, मुझे आने से नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जब तक आँख हमारा चलता है, हाथ चलता है, पैर चलता है, चलो किसी के काम आ जाओ, है ना. किसी के काम आ जाओ, कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे चाहिए, जितना मिल जाता है बहुत है खाने पीने के लिए. अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा मैं इधर में आता हूँ कि आपने देखा होगा भी हाल में क्या कहते हैं उसको, गुजरात में
या गुजरात के यहाँ था। 15 वैकेंसी थे, प्राइवेट कंसर्न में ही था। लगभग 5 से 10 हज़ार लोग आ गए थे। 15,000 जो होटल की रेलिंग थी वो लगभग टूटने लग गई। तो जब ये हाल अभी है, तो जैसे जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो और भी दिक्कत होगी। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आना पड़ता है। तो अब यहाँ पे एक सिस्टम, जैसे कि मान के चलो, हम सीधा का सीधा एक तरफ से रोज़गार की बात करते हैं, दूसरी तरफ मशीन को भी लाते हैं और रोबोट को हम रखते हैं आदमी की जगह पे। रोबोट भी नहीं, जैसे अभी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा ये छीन रहा है। जैसे बैंक में होता था कि पैसा आदमी हाथ से गिनता था, ये ऐसे बुलडोजर नहीं था तो लोग ढेर सारे काम करते थे। तो अब हमारा एक सोच है कि ये व्यक्तिगत सोच, हम ये किसी को नहीं ला रहे हैं। आप तो एक तरफ रोज़गार की बात कर रहे हो तो रोज़गार का साधन ही ख़त्म कर रहे हो, है ना। अच्छा, कभी ये अग्निवीर की बात होती है तो वहाँ तो मैं उनसे भी बात किया हूँ, तो वहाँ चलो कोई बात नहीं, 4 साल में कम से कम उसे आदमी आप बना देते हो, वो कहीं बेकार नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वी शुड बी पॉजिटिव लाइक दैट, है ना। और बात तो करना ही चाहिए हर हालत में। अच्छा, शिक्षा की बात जहाँ तक है, कैसी शिक्षा, जैसे मान लो जो हमने पढ़ा वो तो कहीं काम नहीं आता है नहीं, आपका तो काम आ जा रहा है ना। लेकिन जैसे मान लीजिए हमने शेक्सपियर को पढ़ा तो ड्रामा है, मिल्टन को पढ़ा, मैं एमए इंग्लिश हूँ, है ना, बीएड हूँ और प्लस प्रिंसिपल तो, और मैंने एलएलबी भी 2 पार्ट कर रखा है। पीएचडी हमारे रह गई इसलिए कि नौकरी में चला गया तो नहीं हो पाया। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है 50 रुपया लेकर के, लेकिन मैं इसको थैंक यू देता हूँ कि मैं जो धारा पर्वा बोलता हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज, है ना। उसके बाद 3 कॉलेज में पढ़ाया तो वो तो हो गया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया, फिर अरुणाचल सरकार में चला गया, वहाँ से निकलने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 बच्चे हमारे भी हैं, दोनों वो मास्टर, जैसे आपने कहा है ना, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, वो दोनों उसी में है। एक इंजीनियर है, दूसरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है। उनकी अपनी लाई अपने हिसाब से काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर है अपने फर्म में, वो जहाँ था। तो चलो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे एक जर्नी जैसे मुझे जो करना था कर दिया। अब उन्हें जो करना है वो करेंगे, क्योंकि उनका जनरेशन अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। मुझे ये समझ में कभी कभी नहीं आता वो क्या काम करते हैं, है ना, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, चलिए वो तो कुछ नहीं। अब जैसे मान ली पार्क में कितने दिन से आप आ रहे हो यहाँ? मैं तो सालों से आ रहा हूँ। आज से 10 महीने पहले मैं आपके पार्क में आया, मैं यहाँ पुराना नहीं नया हूँ, और तब से लगभग रोज़ ही किसी न किसी एरिया को ईयर मार्क करता हूँ, उसकी सफाई करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, बच्चों से, बूढ़ों से, कोई हाथ भी छिड़क देता है। तो खैर हमारा उसको कोई मतलब नहीं, हमारा मकसद है लोगों से मिलाना। कुछ विचार तो करें, कम से कम हमको अपने आप को हल्का तो कर लेंगे। क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ? नहीं, सही जा रहा हूँ, अच्छी मुहिम है। अच्छी मुहिम है, लोग जुड़े हैं। अब ये भी नहीं कर रहे कि ऐसा हमने किया, अरे ऐसा हमने किया, इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया, मैं तो नहीं लगा है। हाँ, सबको करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लो इस तरह से अगर आप आते हैं तो जो पीने खाने वाले हैं उसको भी जोड़ो ना, उसको भी जोड़ो। इसलिए जोड़ने के लिए करेगा, जब वो जुड़ेगा तो गंदा नहीं करेगा, है ना। अच्छा, भेदभाव क्यों? आप भी आदमी हो, हम भी आदमी हैं, है ना। जैसे मान लो वो जो लेडी हमको पकड़ी, बोली सर मैं बेगूसराय से पौधा लेकर आई, और उसको ऐसे छोड़ देता तो पौधा नहीं लगता, या फिर वहाँ रखा होता तो कहीं हमने ले आओ अभी हम लगवा देते हैं, मतलब चप्पल हमारा गया कि जाने तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। और जैसे हमारा जो मुहिम है, हर आदमी 2 हाथ का मतलब 1000 आदमी 2000 हाथ, 2000 हाथ 2 मिनट में संडे में कम से कम 2 प्लास्टिक उठा सकता है ना, तो 2 मिनट बहुत खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद हर हाथ, जैसा भी हमने बताया, हर हाथ एक पौधा लगाओ, उसको देखभाल करेंगे आप, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या और भी जो हमने देखा है, एक तो कुत्ते वाले गंदा करते हैं, दूसरा पूजा पाठ करने वाले घर का जितना समय वो फेंक देते हैं, तीसरा अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना, वो दारू पारू वाले, 3 हो गए। और चौथा मैं उसको भी ब्लेम करता हूँ जो बैठ कर आलतू फालतू यहाँ पे बात करते हैं या रास्ते पे चलते हैं, कभी किसी को टोकते नहीं, है ना। मैं तो टोकता हूँ। इसमें आपको, अगर इसमें आएंगे तो आपको सब मिलेगा, IAS भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, वकील भी है, मास्टर भी है, उसके बाद दारू वाला भी है, और जो बिजनेसमैन है वो भी, मैं किसी को लेता हूँ, स्टूडेंट भी है, सबके ओपिनियन है, सबके विचार हैं। और वो ओपिनियन, और जैसे आपसे ही बात करता था, मैं एक ही आदमी है ना, यहाँ तो हज़ारों आदमी मेरे साथ में, है ना। हाँ, हज़ारों आदमी है, और हमारा मकसद है पार्क सुंदर, और कुछ नहीं, ठीक ना। अब जैसे मान के चलिए, वो तो हमने आपको बता दिया, कुछ सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही देना चाहूँगा कि यहाँ पे लोगों को जो आपकी मुहिम में उससे जुड़े, और पार्क की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि 1 हाथ 1 पौधा लगाना आसान है, पौधे का ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, तो एक को तो ध्यान से दे सकते हैं, अरे एक का तो ध्यान दे सकते हैं ना। हाँ, तो 1 से 1000 तो हो जाएगा कि अगर एक पौधे पे लगाए तो उसको ध्यान दें, बस यही ज़रूरी है, तभी बनेगा पार्क अच्छा। और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ही है। हमने तो देख लिया, लेकिन आगे जनरेशन कैसे देखेगी कि क्या पौधा होता है, कौन से पौधे होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं है। सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके घर में बैठे हैं, गेम्स अब सब फ़ोन के अंदर आ गई है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने बच्चों को लाने की यहाँ पे, ताकि और सब भी लाएँ, उन्हें सिखाएं कि यही धरती माँ। अच्छा, इससे आपको नहीं लग रहा है जैसे ये एटॉम फैमिली और जॉइंट फैमिली, जब से याद है कि अपनी लाइफ मुझे याद है कि 4, 15, 16, 20 आदमी लगभग गेस्ट में रोज आते थे, किन्हीं को ट्रीटमेंट कराना, किसी को कोर्ट में केस लड़ना है, ठीक है ना। अभी किसी के पास समय नहीं है, अभी एटॉम फैमिली हो गया, कॉन्सेप्ट ऐसा हो गया, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे,
न्यूक्लियर फैमिली। है ना, न्यूक्लियर फैमिली से कह सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है, बच्चों के रिलेशन मालूम नहीं है, मामा कौन होता है, बुआ कौन होता नहीं होता है। ये कहे जैसे मान लो चाइना में हम दो हमारे एक, तो उसको कोई मामा कहाँ मिलेगा, लड़की भी तो कुछ मैंने से कहीं ना कहीं रिलेशन खत्म हो रहा है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, अगर पूरी दुनिया को अगर मैं देख रहा हूँ, अगर सही मैनेजमेंट हो तो सबको रोटी तो मिल ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और जैसे मान के चलो, जब नकल आप करते हो तो मैं और भी आगे बढ़ता हूँ। अब चाइना ही बना दो इंडिया को, कंसेप्ट चाइना का, जिसके बाद सब ले लो, सब सरकार का हो जाएगा। जो जिस लायक है उसको नौकरी दे दो, नौकरी देने के बाद उसके बच्चे की देखभाल चाइना भी करता है, आप भी कर सकते हो, है ना, आप भी कर सकते हो। दूसरी बात, ऐसे मान के चलिए हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, ठीक है, आप जो पढ़वा रहे हो आज से 4000 साल पुराना, उसके बाद माथे में वही भर रहे हो। हम नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, हाँ, लेकिन जो भर रहे हो तो कैरी ऑन कर रहा है, कहीं ना कहीं हेट्रेड हो रहा है। लोग कपड़े देख करके आपस में आते मिलते बैठते हैं, जाति पाति लेकर के, कहाँ तक भाई, कब तक, है ना, कब तक। उस दिन भी मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद हमने कहा एक काम करो, आप सब के सब कपड़े खोलो, कैसे देखते हो एक जैसे, क्यों लड़ते हो, माथे में टिक्का लगा लिया, टोपी पहन लिया, पगड़ी पहन लिया, क्यों लड़ते हो यार, मुझे बताओ। अच्छा, पूरी दुनिया में लड़ाई हो रही है, कहीं कोई नेता मरता है, नहीं मरता है, आप क्यों मरते हो, आम आदमी। आप क्यों मर रहे हो, सैनिक मर रहा है या आम आदमी मर रहा है। अच्छा, मैं यहाँ बच्चों को भी कहता हूँ, आप नौकरी का दायरा IAS तक ही क्यों रखते हो, और आगे बढ़ो। पूछता हूँ सबसे बढ़िया जॉब क्या है, वो बोलेगा ICS, हमने नहीं, सबसे बढ़िया जॉब है नेता। वो ICS भी उसका फाइल ढूंढने लगता है, आप भी बन सकते हो। बोलो कैसे, पैसे कहाँ से मिलेगा। हिंदुस्तान का 142 करोड़ जो जनता हो, 1 रुपया आपको देगी तो 142 करोड़ हो जाएगा। आपके मोहल्ले में खड़ा हो ना, आप तो बोल नहीं सकते हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, आप जाओगे तो आप अच्छा करोगे, अपने हिसाब से जॉब क्रिएट करोगे, है ना, ठीक। चलो, मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, उसके लिए सॉरी यार, है ना। अब यहाँ आगे बढ़ते हुए हमने, जैसे कि मैं लोगों से जो हमारा टैग लाइन, इससे मैं रिपीट करवाता हूँ ताकि हमारे जो मकसद है लोगों को क्लियर हो जाए। अब भी बोलिए इसको, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। आग सुंदर हो। कोई गलत नहीं है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। अब जैसे मान लीजिए यहाँ देख रहे हैं कि मैं वीडियो ले रहा हूँ, ये ताली बजाना, हाँ करना, वो बीच में ये हो रहा है, तो आप जिसके पास जो है आप वही दोगे, हमारे पास जो है हम वो दे रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कि कुछ मिनटों का श्रमदान, बोलिए आप, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान, गलत तो नहीं है। बिल्कुल सही है। सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़, है ना, सब विष्णु का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। लास्ट में कर जोड़ करता नमस्कार, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। मतलब वो अंधकार के बारे में तो बता ही दिया था, आगे बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद जैसे यहाँ पर है आपका, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है, ठीक ना। और एक मैं और भी जोड़ देता हूँ, नाना पाटेकर का वो डायलॉग है, इसको ख़राब नहीं पाएंगे, मैं इसको जोड़ता रहता हूँ। ये मैं ही बोल रहा हूँ, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है, फिर भी कहते हैं भारत महान है ना। और उम्मीद करते हैं ये 99 जो हैं वो भी ईमानदार बन जाए, हमारा हिंदुस्तान मैं कह सकते हैं वो सोने की चिड़िया जो कभी थी वो फिर से लौट जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसे विन करता हूँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू।